chapter number 5 is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. So, H.G. Wells was born on September 21, 1866. He was a prolific English writer in many generations. He wrote dozens of novels, short stories, and works of social commentary. The theme of the story, Footprints Without Feet, is that it is the story of an eccentric scientist named Mr. Griffin. आप सबको पता ही है ये किसके बारे में है, ग्रिफिन के बारे में है. He discovered the formula of invisibility and then tried it on himself. उसने invisibility का formula discover किया और इसे अपने ऊपर ही try किया. He became invisible. वो invisible बन गया. He misused his invisibility. लेकिन उसने इस चीज का misuse किया. He set on fire his landlord's house because he wanted to take revenge. उसने अपने ऑनर के घर को ही आग लगा दी क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था. Then he stole money in Iping. Then he deceived his landlady Mrs. Hall in Iping. He went mad with the power of being invisible. वो एक तरह से अपने फॉर्मूले से पागल हो गया था. He became isolated. अब वो बिल्कुल अकेला हो गया. His formula of invisibility brought him in conflict with community in Iping. Iping के की जो सोसाइटी थी वो उनके साथ एक ड्यूट कंडीशन में था. The story starts when two boys got surprised to see fresh muddy footprints of a pair of bare feet. दो लड़के थे वो सरप्राइज्ड हुए जब उन्होंने देखा कि पैरों के निशान तो लग रहे हैं, मडी मतलब चीकड़ वाले पैरों के निशान लग रहे हैं, लेकिन दिख कोई भी नहीं रहा है. तो ये किसके पैरों के निशान हो सकते हैं? So that was a remarkable sight for them as they didn't know where these marks appeared from. Actually it was Griffin. ये किसके पैरों के निशान थे? Griffin के. He was a scientist who discovered after experiment how to make human body transparent. He swallowed the rare drugs and his body became transparent as sheet of glass. He became invisible without clothes. अगर तो वो कपड़े पहन लेता था तो कपड़े विजिबल होते थे, लेकिन जब वो कपड़े उतार देता था तो वो इनविजिबल बन जाता था क्योंकि उसकी जो बॉडी थी उसने जो भी केमिकल इनटेक किया था उस केमिकल की वजह से उसकी बॉडी जो है वो इनविजिबल बन गई थी. बट नाउ ही डिडंट नो द रिवर्स ऑफ द प्रोसेस. Griffin was a brilliant scientist but a lawless person. But he was not following the laws. He was not liked by his landlady. Landlord tried to eject him. Landlord चाहते थे कि वो घर से चला जाए. So Griffin wanted to take revenge and set fire on his house and ran away from there. इसलिए Griffin वहां से भाग गया. He had to put off his all clothes in order to look invisible. Invisible दिखने के लिए उसको क्या करना पड़ना था? अपने कपड़े उतारने पड़ने थे. He was invisible but without clothes. अब दूसरी बात क्या थी? उसने कपड़े नहीं पहने थे इसलिए वो इनविजिबल था. अब देखो वो लंदन में था, इतनी ज्यादा ठंड थी, तो ठंड में बिना कपड़ों के इट वॉज ऑल्सो वेरी मच डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज. तो ग्रिफिन escaped from the boys who followed his footprints. It was bitter cold and he was without clothes. He could not tolerate the bitter cold. He entered in a store to pass the night in London. फिर वो एक स्टोर में गया लंदन के. उसने सोचा कि इट्स बेटर टू स्पेंड द नाइट हियर एंड इट वाज द टाइम फॉर द स्टोर टू गेट क्लोज्ड. ही गॉट क्लॉथ्स देयर. स्टोर बंद होने का टाइम था. जैसे किसी ने दरवाजा खोला वो साथ में ही एंटर हो गया और वहां पे छुप गया. इट वॉज वेरी कोजी इनसाइड. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. ही गॉट क्लॉथ्स देयर.
He found meat and coffee also. After that he ate sweets and drank wine. Finally he slept on a pile of quilts. कपड़े भी पहन लिए उसने, उसको खाने के लिए भी मिल गया। जैसे आपको पता ही है एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, जिस तरीके से, जैसे यहाँ पे इजी डे है, या यू कैन से विशाल मेगा मार्ट है, वहां पे क्या है, तो आप अगर वहां पे जाते हो तो आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे पहनने के लिए, क्विल्ट्स वगैरह भी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सच स्टोर्स. सो ही एंटर्ड इन सच अ स्टोर एंड ही वाज वेरी हैप्पी. Griffin kept sleeping until assistant employers arrived in the morning. Next day, जब तक असिस्टेंट एम्प्लॉयर्स आए वो तब तक सोता रहा. इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ ही हैड टू बी नेक्ड. अब क्या हुआ, अब जैसे वो लोग आए उन्होंने किसी को सोए हुए देखा कि यहाँ पे कोई सोया हुआ है, तो जैसे उन्होंने कोई हलचल करनी थी इससे पहले, अगेन ही टुक ऑफ द क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतार दिए, एंड अगेन ही बिकेम इनविजिबल. नाउ ही वॉज नेक्ड इन बिटर कोल्ड. Then he went to Drury Lane in theatre company to look for something. Soon he found a suitable shop. फिर उसे एक ठीक शॉप मिल गई. After a little later he came out wearing bandages round his forehead. अब वो फिर से बाहर आया. अब उसको क्या था, कपड़े पहन के वो इसलिए नहीं चल सकता था कि उसका जो फेस था, फेस उसका फिर विजिबल रहता, फेस इनविजिबल रहता था, और बॉडी पे तो कपड़े डाल लेता था. ठीक है, अदरवाइज बेटे यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से इज कि उसने जब कोई केमिकल बनाया जो इनविजिबल करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को, वो उसने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया. उसने वो पी के देखा, वो इनविजिबल हो गया. इनविजिबल, पूरी की पूरी बॉडी हो गई उसकी इनविजिबल, राइट. कपड़े तो नहीं इनविजिबल हो सकते ना. तो अब कपड़ों को से बॉडी को तो कवर किया जा सकता है. अब हम लोग कपड़े डाल लेते हैं बॉडी पे, लेकिन जो हमारा फेस है, हेड है, वो तो ऐसे ही होता है. अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो कपड़े डाल के चलता है तो उसका हेड है जो, उसका क्या करे. फिर वो एक शॉप पे गया, वहां पे जाके उसने अपने जो अपना फेस था उसको बैंडेजेस से कवर कर लिया कि किसी को ऐसे लगेगा कि शायद इसके चोट लगी हुई है. ठीक है, और जो उसकी आईज थी वहां पे उसने गॉगल्स लगा ली. ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं. आफ्टर लेटर ही केम आउट वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, पहले फोरहेड पे बैंडेजेस, फिर डार्क ग्लासेस लगा लिए, अ फॉल्स नोज, जैसे क्लाउन्स का होता है वैसा नोज लगा लिया, विस्कर्ड्स, मूछें भी लगा ली, एंड अ लार्ज हैट, और जो नीचे वाला पार्ट था जो चिन थी वहां पे फिर से बैंडेज लगा ली. ही स्टोल मनी आफ्टर अटैकिंग द शॉपकीपर एंड रैन अवे. देन ग्रिफिन वेंट टू अ विलेज आइपिंग. फिर वो आइपिंग में गया. ही वेंट टू मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. आइपिंग में एक इन थी, कोच एंड हॉर्स इन. तो वो वहां पे गया, वहां की ऑनर मिसेस हॉल थी. वहां पे इसने क्या किया, 2 रूम्स बुक करवा लिए. हिज अराइवल इन विंटर वॉज अनयूजुअल इवेंट. मिसेस हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद हिम. मिसेस हॉल ने बहुत से एफर्ट्स किए कि ये मेरे साथ फ्रेंडली हो जाए, लेकिन नहीं. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट पर्सन. स्ट्रिक्ट क्यों था, इसलिए था कि उसकी रियलिटी ना किसी को पता चल जाए. Many times Mrs. Hall wanted to had a conversation with Griffin about what he had, why has he got bandages, कि उसको bandages क्यों लगी हैं, क्या हुआ है, क्या accident हुआ है. But Griffin was not in mood to give answer to any question. Though Griffin was an eccentric scientist, but she was satisfied as he had paid in advance. तो उसको मिसेस हॉल को ये था कि इसने पैसे दे दिए हैं एडवांस में. शी इग्नोर्ड इरिटेबल बिहेवियर. आफ्टर सम टाइम द विलेज पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम. अब कुछ टाइम के बाद लोगों ने भी उसकी बातें करनी शुरू कर दी. आफ्टर सम टाइम ही स्टोल मनी. फिर क्या हुआ, उसके पैसे अब जो थे वो खत्म होने वाले थे. मतलब वो जो भी नुकसान करता वहां पे मिसेस हॉल को क्या बोलता था, दैट शी कैन ऐड द मनी इन द बिल, कि ये पैसे जो भी हैं नुकसान के वो बिल में ऐड कर सकती है. नाउ he had no money to pay bill also. So now Griffin
stole the money from clergyman's desk. Mr. and Mrs. Hall woke up and surprised to see the room open. Mr. और Mrs. Hall ने देखा कि दरवाजा खुला था. They entered the room and found chair alive. फिर उन्होंने देखा जैसे वो उस ग्रिफिन के रूम में गए तो चेयर उनकी तरफ उठ के आई. ये कौन कर रहा था सब? ये ग्रिफिन ही कर रहा था. After some time he came out from the room dressed. Mrs. Hall was surprised and how he entered the locked room. He became furious. अब ग्रिफिन टेंशन में हो गया था कि जो विलेज पीपल हैं they will be knowing about him. So a constable, Mr. Jeffords, was called. Mr. Jeffords को बुलाया गया. He was also shocked to see a headless man, but it was his duty to arrest the man. अब वो भी शॉक था. अब ये तो किसी को नहीं पता कि उसको कैसे पकड़ना है, but as a constable it was Mr. Jeffords' duty to arrest him. A fight took place there. Griffin started to remove his clothes one by one. Finally, he became naked and invisible again. He attacked on Jeffords and made him unconscious. Then he got free and hurried from there. Jeffords पे भी उसने अटैक किया. Jeffords क्या था, वो इनविजिबल हो गया एंड इन द मेन टाइम ग्रिफिन वहां से भाग गया. राइट बेटे, इट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर. अब आपने समरी पढ़नी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं. राइट, अगर कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क.